class 9. Welcome back in commercial studies class. Today we will continue with the same chapter number 7, that is joint stock company. Okay. So in the previous video, and this is the second video related to this chapter. In the first video we learned about the meaning, features of joint stock company. Now I hope that you have understood that what is joint stock company, right? It is basically a voluntarily association of people, those who come together to run a business under legal consideration on the legal status. Okay, legal status के तहत वो काम करते हैं, right? So this is joint stock company. Now today in today's video we will learn about the merits and the demerits of joint stock company. First, let's understand that the first merit of joint stock company is that it requires large capital resources. Now, a joint stock company requires large capital because this joint stock company is the company which is working at a large scale. तो large scale पे काम कर रही है, so it requires huge amount of capital. इसको क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा capital चाहिए. Okay? So if the group of people, those who are going to establish a company, in that condition, they may not have this much amount to establish a company. So in this condition, what they can do, they can invite or they can divide this capital into small parts, right? Yes, in the previous video I explained you that what is shares. So they will divide these huge capital because already this company requires large amount, okay, huge capital. So now what they will do, they will divide this capital into small parts, okay, and these small parts is considered as the shares. इसी को क्या बोलते हैं? Shares. Now these shares are purchased by general public, okay. In the previous video also I explained you that if I have purchased 1,000, another purchase 10 shares, another can purchase 100. So according to their requirement, according to their capacity, they can purchase the share of that company. And in this way, the company will get the capital. और इस तरह से उस company को क्या मिल जाएगा? Capital. तो capital की एक huge amount है to set up a business. किसी business या company को set up करने के लिए ये capital चाहिए होता है, right? तो ये कैपिटल को छोटे छोटे शेयर्स में पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है एंड दीज शेयर्स आर परचेज बाय द पब्लिक. शेयर्स क्या करते हैं? ये शेयर्स कौन ले लेता है? पब्लिक ले लेती है एंड दे बिकम द ओनर ऑफ दिस कंपनी. वो इस कंपनी के ओनर बन जाएंगे, ओके, XYZ कंपनी. सो दे विल बिकम द ओनर ऑफ दिस कंपनी एंड दे द पर्सन दोज हु आर गोइंग टू सेट अप दिस बिजनेस, द कंपनी, दे विल गेट द दिस कैपिटल ऑल्सो. और फिर उनको इस शेयर्स के बदले उनको क्या मिल जाएगा? कैपिटल. क्योंकि सभी पब्लिक ने क्या किया? शेयर्स खरीद लिए तो कुछ पैसे लगाए कंपनी. सो दैट दिस पर्सन विल गेट द कैपिटल. सो दिस इज कैपिटल. सो इट रिक्वायर्स द फर्स्ट मेरिट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज दैट इट रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल रिसोर्सेज. ओके, सो रिसोर्सेज मीन्स द एसेट्स और द थिंग्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द business. Clear? Next is limited liability. Now the limited liability here means basically, for example, in the sole proprietorship and your partnership, the liabilities were unlimited. Liabilities क्या थी? Unlimited थी. In this also, okay, the liabilities were unlimited. But in joint stock company, the liabilities are limited. Liabilities क्या है? Limited है. For example, if I have purchased 1,000 shares of a company, okay, then I am responsible for this 1,000 only. अगर मैंने किसी कंपनी से 1,000 shares खरीदे हैं, then I am will be responsible for this 1,000 only. मैं किसके लिए responsible होंगी? सिर्फ इस 1,000 के लिए. So if the company is facing any loss, then in that condition I am responsible for 1,000 only. My personal property will not be affected. Okay, so in this condition, the members of that company is responsible for the face value of the shares which they purchase from the company. वो उसी के लिए responsible होते हैं. So this is
joint stock company, and in this condition the risk is less. रिस्क क्या होता है? लेस होता है. क्यों? इसमें क्या हो रहा है कि अगर लॉस हुआ सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में, अगर लॉस हुआ तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी चली जाएगी. इसमें भी हो सकता है. ओके, देयर पर्सनल प्रॉपर्टी ऑल्सो गेट अफेक्टेड. बट इन दिस इट इज नॉट लाइक दैट. इसमें क्या होगा, रिस्क कम होता है. सो दैट्स व्हाई द पब्लिक इज मोर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट देयर मनी क्या इन दिस कंपनीज. तो यहाँ पे रिस्क कम है बिकॉज देयर पर्सनल प्रॉपर्टी विल नॉट गेट अफेक्टेड. क्लियर? सो दिस इज limited liability. I hope this is clear to you. Okay. Next is continuity of existence. Yesterday also, sorry, in the previous video also, I explained you that one of the features of joint stock company is that it continues. कोई आया कोई गया, it does not affect the company. ये क्या करती, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, उस मेंबर्स या कोई मेंबर पागल हो गया या किसी मेंबर की डेथ हो गई, कुछ भी. So the members of this कंपनी विल नॉट अफेक्ट द कंपनी. इससे क्या होगा, जो उस कंपनी की कंपनी है उसके चलने में कोई इफेक्ट नहीं होगा. राइट? सो द कंपनी विल गोज ऑन. कंपनी क्या करेगी, चलती रहेगी. ओके. सो अनइंटरप्शन ऑफ द members of that company will not affect the existence of the company. इसके एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कोई मेंबर आता है, मर जाता है, तो कोई पागल हो जाता है, या कोई सॉल्वेंट दिवालिया हो जाता है जिसके पास कुछ भी नहीं बचता. सो इन दैट कंडीशन द कंपनी विल रन. बट व्हाट वाज हैपनिंग इन द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, बेसिकली इन दैट कंडीशन अगर सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर ओनर मर गया तो बिजनेस चलाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. अगर कोई और है जिसको हैंड ओवर किया जा सकता है, इन दैट कंडीशन दैट्स फाइन. अगर कोई नहीं है दैट द कंपनी विल बी नो मोर. राइट? एंड द सेकेंड, थ्रू पार्टनरशिप ऑल्सो, इफ द पार्टनर्स गेट अफेक्टेड, पार्टनर्स अफेक्ट हो रहे तो कहीं ना कहीं वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट अफेक्ट्स द पार्टनरशिप. क्लियर? नेक्स्ट इज इफिशिएंट मैनेजमेंट. राइट? नाउ इफिशिएंट मैनेजमेंट, बेसिकली दिस जॉइंट स्टॉक कंपनी इज वर्किंग ऑन अ लार्ज स्केल. राइट? ये बहुत बड़े स्केल पे काम कर रही है. राइट? इसके कई सारे डिपार्टमेंट्स होंगे. ओके, different departments, अलग अलग, because it is working on a large scale. So इसके कई सारे departments होंगे. So it requires some efficient and professional personnel. Okay, so in that condition, joint stock company requires efficient management. For that, they will allot or they will appoint the right person for the right job for the management of this company. Okay, so basically what is happening here, these persons they will improve the efficiency of professional, the employment of professional managers can affect the efficiency of the company. It will affect the efficiency of the company. Efficiency of company. अब जैसे क्या हो रहा था सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्या हो रहा था, बेसिकली सोल प्रोप्राइटरशिप में सारी चीज़ें वो खुद कर रहा था. राइट? सो ऐसी कंडीशन में क्या हो रही थी, कई चीज़ें हो सकता है कि पर्सन सारी चीज़ें ना जाने. सो इन दैट कंडीशन कई बार एरर्स भी हो सकते हैं. ओके, बट यहाँ क्या हो रहा है, कंपनी में हम एक प्रोफेशनल मैनेजर को या प्रोफेशनल मैनेजमेंट्स को हम अपॉइंट कर रहे हैं. राइट? सो इन दैट कंडीशन क्या होगी, उस कंपनी की इफिशियंसी अच्छी हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, पर्सन इज गुड इन टेक्निकल वर्क. अगर कोई बहुत टेक्निकल वर्क में अच्छा है, सो वी विल अपॉइंट दैट पर्सन फॉर टेक्निकल वर्क. इफ द पर्सन इज गुड इन फाइनेंस मैनेजमेंट, दैट पर्सन विल बी. सो इन दिस द एफिशिएंसी, उसकी कार्यक्षमता जो होती है इंक्रीजेज, वो इंक्रीज कर जाएगी. राइट? So efficiency of that organization increases, and this the efficient management can be seen in this joint stock company. Right? क्योंकि हम सही पर्सन को, सही एक्सपीरियंस पर्सन को हम अपॉइंट कर रहे हैं फॉर द मैनेजमेंट. ओके. नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल, दिस a person purchase the share, okay, of a company. Okay, but this person is not interested to continue in the business in this company. ये person बहुत interested नहीं है कि आगे ये कंपनी में कंटिन्यू करे. राइट? सो इन दैट कंडीशन
the shares of a public company are listed on the stock exchange. स्टॉक एक्सचेंज में इन सब के सारे जो शेयर्स होते हैं वो लिस्ट आउट कर दिए जाते हैं, बताए जाते हैं. ओके, नाउ इन दैट कंडीशन दिस पर्सन कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू बी. वो क्या कर सकता है, बी को ट्रांसफर कर सकता है. ओके, सो अब क्या हो गया, दिस कम्स टू दैट, तो वो ट्रांसफर कर देगा एंड इजली ही कैन एग्जिट आउट ऑफ दैट कंपनी. ठीक है, सो इसमें क्या होती है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है, पॉसिबल है, राइट. नेक्स्ट इज योर, सो आई एक्सप्लेन 5 merits and these merits are enough, okay, for you. So just go through these 5 merits, these are enough. So 5 merits are, first is large capital resources, large capital चाहिए. Second is limited liability. Third is continuity of existence. And the fourth is efficient management, and the fifth is transferability of shares. Right, now let's understand the demerits of joint stock company. Okay, हम joint stock company के demerits को समझते हैं. The first is legal formalities. In the previous video I explained you that to set up a joint stock company is time taking. And how it is time taking? In that only the legal formalities are required. For example, if a person or a group of people they want to establish a company, for that they need to go to ROC, Registrar of Company. Now there they have to do some documentation. When they will do the documentation, okay, after that the person will be satisfied. उसके बाद वो satisfy होगा, then they will come for verification. उसके बाद verification होगा. And after that verification, the person they will get the basically certification of incorporation, right. So it requires lots of legal process. Okay, एक proper format होता है जिसके तहत काम, and the company should be registered under the Company Act, right. Before it was 1956 and after that it is 2013. So the company should be registered under this Company Act. Clear? So that's why it requires lots of legal formalities. और वहीं पे sole proprietorship में क्या हो रहा था, या sole proprietorship में कोई registration करने की जरूरत नहीं है. If anybody XYZ wants to set up a business, they can set up. Okay, establish their business. उसके लिए कोई legal formalities की जरूरत नहीं है. But in case of your this पार्टनरशिप ऑल्सो इट इज ऑप्शनल. पार्टनरशिप में भी क्या है, ऑप्शनल है. ओके, बट फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी इट इज कंपल्सरी टू गेट द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट, राइट. नेक्स्ट इज लैक ऑफ मोटिवेशन. नाउ व्हाट इज लैक ऑफ मोटिवेशन? बेसिकली इन दिस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, ओनर्स of that company are not directly in contact with the customers. Okay, ये क्या होते हैं, customers के directly contact में नहीं होते हैं. But what was happening in sole proprietorship? See, I am just comparing also so that you can understand the concept. Okay, so basically these customers, basically आपका सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या हो रहा था, वो जो इंडिविजुअल था डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर्स, वो कस्टमर्स के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में था. पार्टनरशिप में भी कुछ हद तक, क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं, सो दे आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द कस्टमर. बट हियर इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज़ वर्किंग ऑन अ लार्ज स्केल. सो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी में क्या आपका मुकेश अंबानी क्या एम्प्लॉयज़ के या कस्टमर्स के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में आ रहा है? नो. ओके, सो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज में क्या होता है कि वो डायरेक्टली कस्टमर्स के कांटेक्ट में आना पॉसिबल नहीं है. एंड समटाइम्स दीज पीपल दे आर नॉट इन कांटेक्ट विद द पर्सन दोज हु आर वर्किंग इन दैट कंपनी, उनके भी कांटेक्ट में नहीं आ पाते. सो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, दे गेट डीमोटिवेटेड. समटाइम्स क्या होता है, वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं. ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी प्रेजेंट सिनेरियो में क्या हुआ है कि द पीएम ऑफ आवर कंट्री वेंट टू लद्दाख. ओके, एंड ही मोटिवेटेड आवर सोल्जर्स. उन्होंने क्या किया, सोल्जर्स को मोटिवेट किया. अब इससे क्या होगा, दे गेट मोटिवेटेड. हमें भी कोई हमें मोटिवेट करता है कि तुम कर सकते हो, अगर आप करोगे तो इट विल गेट डू दिस एंड यू आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तो वी गेट मोटिवेटेड.
एंड वी विल ट्राई टू डू आवर बेस्ट। तो हम क्या करना चाहते हैं, अपना और अच्छा करना चाहते हैं। सो मोटिवेशन इज रिक्वायर्ड फॉर ह्यूमन बीइंग। ओके, सो इट्स अ वेरी इंट्रिंसिक फीलिंग ऑफ अ पर्सन, एक अंदरूनी फीलिंग होती है। ओके, सो लैक ऑफ मोटिवेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, मोटिवेशन उतना नहीं मिल पाता है, राइट। नेक्स्ट इज basically your delay in decision. Now delay in decision means basically so many members are involved, those who are managing the organization, right? So if any decision is to be taken in sole proprietorship, he himself can take the decision and can work on it, वो directly उस पर काम कर सकता है। बट इसमें क्या, अगर कोई डिसीजन लेना है तो बेसिकली उसकी एश्योरेंस होनी चाहिए, सारे मेंबर्स उसमें जो मेंबर्स हैं मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, दे शुड बी एग्री। ओके, फिर वोटिंग होती है, बेसिकली इक्वल वोटिंग होती है। अगर इक्वल वोटिंग हुई, इफ एवरीबडी इज रेडी, देन इट इज फॉर एग्जाम्पल कोई हमें डिसिप्लिन अपने कंपनी के लिए लाना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगी, उस डिसिप्लिन के बारे में डिस्कस किया जाएगा अमंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एंड देन सी बेसिकली दीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द इम्पॉर्टेंट पर्सन, दोज हु आर मैनेजिंग द कंपनी। यही लोग जो होते हैं मैनेज करते हैं कंपनी को। ओके, बट दीज शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, ये ओनर्स है, उन्होंने अपने शेयर्स बस लगाए हैं, राइट। सो यही मेन होता है। सो उनके बीच डिस्कस किया जाएगा, फिर वोटिंग होगी, वोटिंग में अगर सब एग्री होते हैं, मेजॉरिटी होती है, सो इन दैट कंडीशन दैट रूल विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो कंफर्म किया जाता है। सो दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ टाइम, इसलिए डिसीजन लेने में इट टेक्स टाइम एंड इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ऑलिगार्की। इकोनॉमिक ऑलिगार्की मीन्स basically it's a new word in economic for you. Okay, so oligarchy means basically the management in few hands, right? So management or rule by few, okay, so rule by few is oligarchy, इसी का मतलब होता है rule by few. So in this condition, the management of company is supposed to be carried on account to collective will of the member. क्या होता है, कुछ ही मेंबर्स होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस या किसी वर्क को करने में पार्टिसिपेट करते हैं, राइट। सो बेसिकली सो रूल बाय फ्यू क्लियर ही हो गया है, ये रूल बाय फ्यू हो रहा है, कुछ लोग ही इसको रूल करते हैं। ओके, सो ऑफन डायरेक्टर्स ट्राई टू मिसलीड द मेंबर्स। अब देखो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, कुछ लोग हैं जो सारे डिसीजंस ले लेंगे, तो उनके सारे डिसीजंस मानने हो जाएंगे। सो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी जो बाकी जो मेंबर्स होते हैं दे गेट मैनिपुलेटेड। ओके, वो मैनिपुलेट हो जाते हैं, उनको मैनिपुलेट कर लिया जाता है फॉर द वोटिंग पास, वोटिंग के लिए। सो मान लो कि कोई 5 मेंबर्स हैं, दे आर टेकिंग द इम्पॉर्टेंट डिसीजन, वही 5 मेंबर्स का बाकी सब करें ना करें डजेंट मैटर, उनको मैनिपुलेट कर लिया जाता है। So in this condition, this is the very means we can say it is a drawback of joint stock company, that basically कहने को जो है कि there are board of directors, in those board of directors also some few members are ruling the company, कुछ few members ही होते हैं जो उस कंपनी को रूल करते हैं, राइट। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, demerit of the joint stock company. Now last is corrupt management. Now the corrupt management, basically what is happening here, this joint stock company is working on a large scale. Okay, so lots of things are required. Okay, so in this condition, in a company there is often danger of fraud and misuse of property by dishonest management. So everyone is working at the different levels. सभी क्या कर रहे हैं, different levels पे काम कर रहे हैं। So बड़े जगह पे फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। अभी वही सोल प्रोपराइटरशिप में था, एवरीथिंग इज इन दैट पर्सन एंड वो इंडिविजुअल के हाथ में सारी चीज़ें थी, बट नाउ ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। सो कभी कभी क्या होता है कि कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जस्ट गलत शो कर दिया जाता है उसमें। ओके, बहुत सारी चीज़ें मतलब छुपा ली जाती हैं, हाइड कर ली जाती हैं। सो ऐसी कंडीशन में बड़ी जगह पे करप्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। सो दिस इज
all about the merits and the demerits of your joint stock company. Demerits are legal formalities, lack of motivation, delay in decisions, economic oligarchy, and corrupt management. So this is all about the merits and demerits of this joint stock company. 5 files are enough for you. Okay, so I have explained the important merits and the demerits of this chapter joint stock company. Just go through it, understand it, read it properly. You will understand the concept. Now I hope that you have understood about the joint stock company's meaning, its features, merits and demerits. In the next video, we will continue with the chapter. Thank you so much for watching me. Thank you so much and have a nice day.